स्पेशली इन इंडिया लोगों को ऐसा लगता है कि बीटेक करके AI ML लेके या और कोई ऐसे एमर्जिंग फील्ड लेके अभी जो चल रही हैं इसको कर लिया जाए। लेकिन असलियत ये है बीटेक की कि अगर आप कोर ब्रांच से हैं, कोर ब्रांच से इलेक्ट्रिक हो गई, सिविल हो गई, मैकाट्रॉनिक्स हो गई, इसके अलावा मैकाट्रॉनिक्स भी कोर ब्रांच नहीं है पर इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं। तो ये सारी फील्ड्स को कोई अभी देख नहीं रहा है। जैसे IoT है, रोबोटिक्स है, दे आर सम ऑफ द वेरी ग्रेट फील्ड्स और इनके जो इंजीनियर्स है करंट मार्केट में वो बहुत कम है। There is huge opportunity for the other fields rather than just focusing on AI and ML. Where do you feel which is the next big industry in tech? वैसे मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है ना, लेकिन अगर मैं पूरे स्टैटिस्टिक्स को देखूं और मार्केट ट्रेंड्स को देखूं, सो द नेक्स्ट बिग थिंग इज गोइंग टू हैपन इज AI एजेंट्स। Russia or China, they holds around 70% of the cyber crime revenue. Why they are like so brilliant with hacking and all? Actually, वेलकम टू द हसलर शो एवरीवन। आज के पॉडकास्ट एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं मिराज मीर। इज द फाउंडर ऑफ साइबर घर, एन इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस टू स्टे सेफ ऑनलाइन। Alongside entrepreneurship, he is also a computer science engineer and a passionate educator. There are only two kind of people in cyberspace. One who does not know they are hacked and one who knows that. आज के पॉडकास्ट के इस स्पेशल एपिसोड में we will talk about advantages, disadvantages, good things and what can go really wrong. और आप अपने आप को साइबर सिक्योरिटी के क्राइम से कैसे बचा सकते हो। द हसलर शो ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग स्पेशल थ्रू अ 101 पॉडकास्ट इन दिस यूट्यूब चैनल। और अगर आज के इस पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर मोर वीडियोस। वेलकम टू द हसलर शो मिराज मीर, हाउ आर यू? I'm good, Raju. How you are? बहुत बढ़िया। Thanks for joining us on the Hustler Show. It's my pleasure to be here with you today, and let's begin. Okay, so like if I have to ask you, who is Miraj Mir? What do you do and how it is important for us? So how will you define this? Actually, बहुत कम टाइम पे मेरे बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल है सभी के लिए, मेरे लिए खुद भी है ना। तो यू कैन नो समवन लाइक मी हु इज एक्चुअली मिराज। Miraj is a tech enthusiast. Miraj is an entrepreneur. Miraj is a great artist. You can also known me as a great teacher. I consider myself a good teacher, that I can be able to deliver whatever I want, and the students are actually willing to listen what I am saying and what I am teaching actually. So you can also know me as a biggest example of a failure, right? Because it's all started when I was started failing. So here I'm sitting here today just because of the failures which made me today sitting here, or the things which I am doing. And if you talk about professionally, I am a professionally entrepreneur, and I have founded 2 to 3 4 companies, you can say. CyberGar, Vikasgar, Labo Wales, and all of them are having some unique concepts and having some great idea behind the frame, so that we can be able to contribute to the society in a better way. So that's all about me, that who I am. Okay, great. If someone have to remember me, then they can be remembered as a Miraj Mir is a example of a biggest failure. So it is a better introduction for me. Okay, great. So like today we'll talk about the cyber security and why it is important for us. Like if we have to start talking about this particular thing, like about cyberspace, so how do you see this in India? Like आज बहुत ज़्यादा cyber crime हो रहे हैं, like day by day. We can see in 2019 the pre-COVID attack on ISRO, post-COVID attack on AIIMS hospital. So these are some of the like major cyber crimes which happens in India. और regularly cyber attacks हो रहे हैं. Like according to the research,
I have seen approximately like $10 lakh या फिर more than this का जो मतलब रेगुलर वो इकोनॉमी इससे रशियन गवर्नमेंट को जाता है. सो हाउ डू यू सी दिस साइबर क्राइम? Cyber space and cyber crime is a two different things which we have to understand first. Okay. Cyber security is completely a different domain, and cyber crime is a subdomain of that cyber security. Exactly. So अगर हम देखें आज के ज़माने का, स्पेशली जो करंट फेस चल रहा है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, तो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति में हम लोग हैं कि हम अपने डाटा सेव तो कर पा रहे हैं फ्रॉम साइबर अटैक्स, फ्रॉम रेड हैट हैकर्स, फ्रॉम ब्लैक हैट हैकर्स, बट हम कंप्लीटली सिक्योर आज भी नहीं है और कोई भी कंपनी नहीं है. देयर ऑलवेज अ लूप होल जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अगर अच्छा हैकर है so they can be able to identify that loophole and they can be able to attack and they can be able to retrieve the data, no matter कि वो एप्पल है, no matter वो माइक्रोसॉफ्ट है, no matter वो कितनी ही बड़ी कोई फार्म कंपनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अगर हम चाहें तो वो करा जा सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इन स्पेशली इन इंडिया एंड इवन द आउटसाइड ऑफ द इंडिया, अगर हम बात करें तो इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा एक हैकर को बांध देता है ऐसी चीजें ना करे करके. और जैसे ही जो सुनते हैं कि जैसे इसरो में अटैक हुआ, जैसे और भी जैसे कंपनीज है उन पे अटैक हुआ, जैसे कोविड एंड प्री कोविड जो टाइम चल रहा था उसमें सुना होगा सबने कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में कितना अटैक हुआ, जब इलेक्शंस के टाइम आते तब कितना अटैक होता है. एग्जैक्टली. सो ये सारे very proudly I can say that जो Indian cyber security experts है they are able to handle it and they are actually able to handle those, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अटैक हुए थे वो सारे के सारे अटैक्स को हम लोगों ने कैप्चर किया था, उसी के साथ साथ उसको डिस्ट्रॉय भी किया था. मतलब वो हमारे कोई भी डाटा को एक्सेस नहीं कर पाए थे. इवन 1 लाख के ऊपर जो अटैक हुए थे साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट से. अगर आज के टाइम पे बात करूं साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी और अगर वो क्यों इंपॉर्टेंट है साइबर क्राइम के लिए, द फर्स्ट रीजन वी कैन कंसिडर इज इंडिया में सबसे ज्यादा जो कमी है लोगों के पास वो है नॉलेज की. दे आर हैविंग द रिसोर्सेज, लोगों के पास पैसा है, दे आर स्पेंडिंग इट. इंडिया में भी एक सबसे बुरी चीज ये हो गई है दैट दे कैन बी एबल टू बाय फोन्स एंड अदर थिंग्स इन EMI. तो जो लोग के पास नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपर क्लास, मिडिल क्लास, जो जिनके पास अच्छी नॉलेज है और जो अच्छे पढ़े लिखे, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर बैकग्राउंड पीपल who are not having that much about of knowledge and education, and they are using their smartphones, right? So suppose they are buying a Apple phone or Samsung phone, suppose they buy a S24 for an example, but उस पे लोकेशन ऑन है उनकी. कई ऐप उसमें ऐसे रहते हैं जो कि उनको पता नहीं रहता है, उनका डाटा जाते रहता है. ठीक है. ऐसी कई अभी खबर आई होगी जो इंडियन गवर्नमेंट ने कई एप्स बैन किए थे, उसमें कई बहुत बड़े गेमिंग एप्स भी थे. तो वो सारी चीजें सबको पता नहीं रहती है. और साइबर क्राइम का इंडिया में सबसे बड़ा रीजन यही है दैट पीपल आर नॉट हैविंग इनफ नॉलेज. इसी के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में वो भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है. जैसे अभी हम लोग फोन किसी को करते हैं, अगर आप अभी फोन किसी को करोगे तो गवर्नमेंट ने उसमें अभी एक प्री रिंगटोन डाला हुआ है कि वो साइबर थ्रेट के बारे में बताएगा कि आपको लालच के चलते किसी भी लिंक को ओपन नहीं करना है. आपको लालच के चलते कोई भी आपके पास मैसेज आ रहा है, लिंक आ रहा है, आप उसको ओपन नहीं कर रहा है. बट स्टिल पीपल डू दैट. व्हाई? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, अब उतनी अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने कभी उतना मतलब देखा ही नहीं है ना समझा नहीं उन चीजों के बारे में. अभी रिसेंट अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था कि यू आर जस्ट पिकिंग अप अ कॉल और वो कॉल से आपका OTP सामने वाले को पता चल जा रहा था. ये अफवाह भी फैली थी. एक्चुअली ये ऐसे काम नहीं कर रहा था. ये इसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा था कि द एक्चुअल हैकर इज कॉलिंग यू. आफ्टर कॉलिंग वो आपके फोन को OTP में मतलब दूसरे को कॉल करता था और वो OTP जो है वो उसको ट्रांसफर हो जाता था. ओके. बिकॉज जस्ट ही इज टाइपिंग दैट नंबर इन हिज फोन. मतलब वो जो बोल रहा है वो उसमें टाइप कर रहा है. सो अ न्यू पर्सन हु डजंट नो अबाउट दिस फील्ड, तो उनके साथ ये ऐसा होता है. और मैक्सिमम टाइम यू विल बी एबल टू हियर दैट कि सारे जो साइबर क्राइम हुए हैं वो ज्यादातर या तो गाँव के लोगों के साथ हुए हैं या तो ऐसे लोगों के साथ हुए जो बताते हैं कि हमको लॉटरी लगी थी
एन नंबर ऑफ अमाउंट की, सामने वाले ने हमको बोला कि आप हमारे अकाउंट में इतना प्रोसेसिंग फीस डाल दीजिए और हम उतना प्रोसेसिंग फीस डाल देते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द मेजर थिंग्स जो पूरे वर्ल्ड में भी चल रही है। इसी के साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, स्पेशली इन इंडिया लोगों को ऐसा लगता है कि बीटेक करके AI ML लेके या और कोई ऐसे एमर्जिंग फील्ड लेके अभी जो चल रही हैं इसको कर लिया जाए। लेकिन असलियत ये है बीटेक की कि अगर आप कोर ब्रांच से हैं, कोर ब्रांच से इलेक्ट्रिक हो गई, सिविल हो गई, मैकाट्रॉनिक्स हो गई, इसके अलावा मैकाट्रॉनिक्स भी कोर ब्रांच नहीं है पर इसके अलावा और भी फील्ड्स है, तो ये सारी फील्ड्स को कोई अभी देख नहीं रहा है। जैसे IoT है, रोबोटिक्स है, दे आर सम ऑफ द वेरी ग्रेट फील्ड्स, और इनके जो इंजीनियर्स है करंट मार्केट में वो बहुत कम है। देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर फील्ड्स रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन AI and ML। AI ML का अभी टाइम चल रहा है, बट देखो कब तक के, ऐसे ही कितनी टेक्नोलॉजी आई, कितनी टेक्नोलॉजी चली गई, कोई पूछेगा भी नहीं कि AI ML वाले डेवलपर को आफ्टर 15 years you will see। So this is the current mindset of the students itself, कि अगर हम पढ़ रहे हैं और मार्केट में पूरा AI ML चल रहा है, so first of all you have to see के next 4 year में क्या प्रोजेक्शन रहने वाला। Even in the my batch, even I am a student right now, so even in my batch the maximum people are from AI and ML background। They are doing their jobs in Noida in the salary of 17,000 rupees। The same person who passed out, like he was our senior, he passed out with the domain of cyber security, and he is successfully able to grab a 12 LPA job in cyber security domain। So you can see the difference. A person who is doing a job in 17,000 in AI ML, a person who is doing a job in cyber security in other domains and other departments. So I'm not completely saying that you are not able to find a good opportunity in AI ML, but the chances are really less। But comparatively to the other domains, there is a huge need. If you are having a right skills in the cyber security domain, you will be able to crack a very good job, you can be able to safeguard your company, you will be able to safeguard your एटमॉस्फेयर, और जहां आप रह रहे हो उनको आप बता पाओगे। सो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वी स्टार्टेड साइबरगढ़। Like even you reached me for the CyberGuard, and like many of them know me as a CyberGuard founder here in Chhattisgarh। So CyberGuard actually we take that name from Chhattisgarh and we put cyber then Garh, because we want to start something which are actually from Chhattisgarh, a person who is starting from Chhattisgarh and it is going globally। Like may you heard about the Y Combinator, the biggest American accelerator। So what I just want to do is that I just want to make products which will be known from Chhattisgarh, but a person who is sitting in America, New Zealand, Australia, they are using about our products। So this is the vision we kept to bring CyberGuard into the face of Chhattisgarh, and introduced in this Jan 25, and we already got a very good responses on this। So first of all, we are doing the same thing, awareness, the first and foremost thing। So how your sorry to interrupt you, how your organization work, like what does CyberGuard? If I have to define CyberGuard, then CyberGuard actually a platform for cybersecurity enthusiasts। I will not say it a community driven platform। There is a part where we have community of the CyberGuard, but it's not completely a like CyberGuard is not completely a community driven platform। हम CyberGuard में actually क्या focus कर रहे हैं, पीपल्स को, और जो स्पेशली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स है, दोज हु वांट टू लर्न अबाउट साइबर सिक्योरिटी, दोज हु वांट टू नो मोर अबाउट साइबर सिक्योरिटी, वी आर एक्चुअली हेल्पिंग देम टू डू इट। हाउ वी आर डूइंग, we are collaborating with government, we are collaborating with NGOs, we are collaborating with private companies, we are raising funds so that we can be able to deliver the good content। Government is directly supporting us in this, various institutions are supporting us on this, and we are actually helping them to grab the placements, we are actually helping them to make them skill worthy so that they can be able to do the work as well as do the other works in the industry। Okay, आपने अभी रिसेंटली मेंशन करा कि आपका जो ब्लूटूथ या फिर लोकेशन ऑन रहता है, लाइक लेट्स बैक अगेन टू द टॉपिक, तो उससे भी आपकी डिवाइस को हैकिंग करने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। सो हाउ इट हैपेंस, लाइक कैसे, मतलब हम अपने फोन डिवाइसेस के
लोकेशन को या फिर ब्लूटूथ को या फिर वाईफाई को हैक करके अपने फोन को कैसे हैक किया जाता है? व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस? लाइक वाईफाई और ब्लूटूथ को हैक करना इज वेरी इजी. ओके. There is an application too. I will share it with you and with the audience too, है ना. But don't you use it as कि हमको एप्लीकेशन मिल गया और हम एप्लीकेशन से जाके बाजू वाले घर का छत पे बैठ के वाईफाई यूज कर रहे हैं. ये नहीं करना है, ठीक है? Okay. उसमें पकड़े जाओगे. तो like the easiest thing is to crack is the Wi-Fi password. You just enter the Wi-Fi name into that application. It will like डिप्लॉय वेरियस काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स के क्या उसका कोड हो सकता है ना. और फाइनली वो कोड उसको मिल जाएगा एंड विद इन लाइक 15 मिनट्स यू विल बी एबल टू हैंडल एनी वाईफाई कहीं का भी, ठीक है. अनटिल एंड अनलेस इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल वाईफाई और वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन वहां पर लगाया गया, बट वो भी ब्रेकेबल है ना. सो वाईफाई, ब्लूटूथ, दिस आर द वेरी इजिएस्ट थिंग्स टू लाइक ब्रेक. और लाइक लोकेशंस का सबसे ज्यादा खतरा होता है. क्यों खतरा होता है? बिकॉज हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है, हर कोई किसी ना किसी के साथ मिल रहा है ना. यू नेवर नो कि कौन सा किडनैपर जो है वो पढ़ा लिखा है ना. कौन सा कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके अगेंस्ट में काम कर सकता है. सो नाउ फॉर एन एग्जांपल, आई एम वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स. आई एम वर्किंग विद गवर्नमेंट, आई एम वर्किंग विद प्राइवेट सेक्टर, आई एम वर्किंग विद एनजीओज डायरेक्टली, जो नो बोनो कंपनीज रहती हैं. अब मेरे को ये नहीं पता है कि कौन मेरे कब अगेंस्ट में चला जाए, राइट. सो सपोज मेरा स्नैपचैट सबसे मेजर वही है ना. उसमें लोकेशन मेजरली लोग ऑन करके रख देते हैं, तो आप जहां जहां जा रहे हो वो आपके इमोजी, बीट इमोजी के साथ में आपको दिखाते रहेगा कि आप यहाँ यहाँ जा रहे हो. नाउ फॉर एन एग्जांपल कि मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, है ना, और वो लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और वो लोग वहां पहुंच गए, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान किसको है? मेरे को है. सेम थिंग अगर आप फोन हैक करना चाहते हो लोकेशन के उससे, तो इट्स नॉट कंप्लीटली पॉसिबल, क्योंकि उसके अलावा और सारी डिटेल्स लगती है, ठीक है. सिर्फ लोकेशन ट्रैक करने के लिए आप जो जीपीएस सिस्टम है या फिर जो लोकेशन ट्रैकर है, आप उसको हैक कर सकते हो और उसको आप अपने कंपेरेटिवली यूज कर सकते हो. सो देयर आर मेनी केस लाइक दिस, इवन इन इंडिया एंड इवन इन आउटसाइड. व्हाट हैकर्स एक्चुअली डू, दे एक्चुअली वेट कि वो जो पर्सन है उस एरिया में आए, उसका लोकेशन ऑन है, उनको पता है. फ्रॉम एनी एप दे विल ट्राई टू ग्रैब द लोकेशन, दे विल ट्रैक देम, एंड लोकेशन से बहुत सारी चीजें पता चल सकती है. क्या क्या पता चल सकता है? कि आप कब कहाँ जा रहे हो. उसी के साथ साथ आपके जो फोन में जो डिटेल्स हैं, जैसे बैंक डिटेल्स कई बार हम सेव करके रखते हैं ड्राइव में, तो जब भी आप देखे होगे कि हम जब भी कोई पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमारे जो कार्ड्स की डिटेल है वो डायरेक्टली अपीयर हो जाती है. If you want to use this Visa और Mastercard, बस आप उसको टच करोगे और आपका पेमेंट हो जाएगा. So this happens, है ना. तो वो डाटा आप रिट्रीव मैक्सिमम लाइक पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर चांसेस के 5% 10% कि आप अगर अच्छे हो तो आप कर लो, निकालो. Like if we have to talk about like the various kinds of cyber security के जो hacking होते हैं, processes होते हैं, तो उसमें like one of them is ransomware attack. What is this? रैंसमवेयर अटैक्स इज एक्चुअली लाइक आप बस जैसे आपके पास कोई लैपटॉप है और वो लैपटॉप पे मैंने क्या किया कि बस एक कुछ चीज इंसर्ट कर दी. इसका मैं, ये बहुत ही सही क्वेश्चन है ना, और इसका मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सभी को बता रहा हूँ कि देयर इज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ गुजरात. सो व्हाट दे एक्चुअली डू, जो माइक्रोसॉफ्ट है, सो माइक्रोसॉफ्ट का उन्होंने रेप्लिकेट निकाला सर्विसेज का. सो नाउ सपोज यू आर find any problem in your firmware, like firmware भी छोड़ो, आपने कोई प्रॉब्लम फाइंड किया विंडो के फायरवॉल में, ठीक है, और फायरवॉल में आपको लगा कि यार मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन से मदद चाहिए. आप गूगल में जाओगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन नंबर खोजोगे, वो कंपनी का नंबर निकलेगा जो गुजरात बेस्ड है, नॉट माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड, राइट. सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज कि वो पूरा पेज उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसा बनाया, सारी चीज. इवन उनका जो डोमेन था वो microsoftsupport.com पे उन लोग रजिस्टर करवाए थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट www.microsoft.com पे चलता है. उसके अलावा उनका प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स लगता है. तो ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है. व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग कि जैसे आप कॉल करें उनको कस्टमर केयर में, व्हाट दे विल से कि आप विंडोज से दूसरे विंडोज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट दे स्टार्टेड सेड वी आर जनरेटिंग अ लिंक, यू क्लिक ऑन दैट लिंक, और उनके पास उनका एक्सेस चले जाता था. दैट वी आर एक्चुअली सॉल्विंग,
क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट में होता है, ठीक है। अगर आप कोई टोकन रेस करोगे, इफ यू आर एक्चुअली हैविंग अ प्रॉब्लम इन योर सिस्टम, सो विल हैंडल दैट प्रॉब्लम बाय देयर कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर से। सो दे स्टार्टेड डूइंग द रेप्लिकेटिंग द थिंग। वो लोग क्या करते थे, अपना जो सॉफ्टवेयर था उसको उसमें डाल देते थे, और उससे दे आर लाइक बहुत ज्यादा पैसा, मतलब यू विल नॉट इवन इमेजिन कि इतना ज्यादा पैसा वो एक एक कंप्यूटर से, क्योंकि बैंक डिटेल सबके उसी में, एक बार वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में आ गया एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस इट, मतलब आपको जो चीज चाहिए वो कर सकते हो। और इसको पकड़ा किसने, ये सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है। अ हैकर, अ ब्लैक हेड हैकर, राइट, who is sitting in Australia or Australian, he find out that how he actually got some problem in his new laptop, और वो टोकन रेस किया, टोकन रेस करने के बाद में उन लोग ने उसको हेल्प किया, सो he found some mistake that कि इनकी आवाज सही नहीं लग रही है, है ना, इनका जो फोन नंबर है वो ओरिजिनल नहीं है। सो ये these are the some very few things which you can help to identify the thing। हम इसी चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो छोटी छोटी चीजें उन्हीं को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसी से हमारा सबसे ज्यादा जाके आगे प्रॉब्लम होता है। Who is a blackhead hacker? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स, और भी टाइप के होते हैं। ब्लैक हेड होता है, रेड हेड होता है, और ग्रे हेड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैकर्स कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। सो यू कैन नो समवन जो रेड हेड हैकर है, वो मेजरली ये सारे टास्क में इन्वॉल्व रहेगा, कि साइबर क्राइम्स में, हाउ टू एक्सट्रॉक्शन में, उसके अलावा कि कहाँ से वो कैसे पैसा और निकाल सकता है, या कैसे वो चीजें खराब कर सकता है सारे। और जो ब्लैक हेड हैकर होता है, उसका जो मेजर वर्क होता है वो सेव करना होता है। सो ऑल द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं अभी मार्केट में, जो जॉब्स कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली अ ब्लैक हेड हैकर, क्योंकि उनको सेव करना है रेदर देन उनको रिट्रीव करना, नुकसान करना। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। Okay. Like recently we are talking about like pre-COVID attack and the post-COVID attack, and like everyone knows ki like if we are talking about ISRO, they have great scientists, great engineers, but still unka system hack ho ja raha hai. So like how it happens? It actually happens in, मतलब सालों में जो एक घटना होती है ना, ये वो सालों में एक घटना है। कि नो मैटर हाउ ग्रेट साइंटिस्ट, नो मैटर हाउ ग्रेट पीपल दे आर, एंड आई रियली रेस्पेक्ट, क्योंकि आई गॉट अ प्रिविलेज दैट आई एक्चुअली विजिटेड द इसरो सेंटर, जहाँ से हम अभी मून में लॉन्च करे थे, वहां पर वेयर पीएम मोदी सिटिंग, वो एरिया, वो पूरा एरिना हम लोग, मैंने घूमा, है ना। सो एक ये बहुत बड़ी चीज, हाँ, एक मेरे हाथ लगी के, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्राउड मोमेंट था, क्योंकि हम लोग वहां पर जो स्पेस सेंटर पूरा विजिट करे, लॉन्च पैड विजिट करे, तो एक्सपीरियंस ही अलग था। इफ आई कम ऑन द टॉपिक जो हम बात कर रहे थे, तो वही बात है, they are the scientists, they are the experts, but at the end they are also human beings. So everything which you are building, जैसे अगर मैं अभी कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ जो बहुत अच्छी है साइबर सिक्योरिटी पे, है ना, बट देयर आर द लूप्स, क्योंकि आप सारे लूप्स और सारी चीजों को कवर नहीं कर सकते। इसका मैं एक एग्जांपल लूंगा कि जैसे यू आर फ्रॉम भिलाई, राइट, सो आप इधर से निकल रहे हो जुनवानी से, और आप जा रहे हो उधर मेन रोड, रिंग रोड में, बीच में बहुत सारे चौक है, आप एक चौक से पुलिस वाले से बच के गए, दूसरे में जाके फंसोगे, दूसरे से निकले तीसरे में जाके फंसोगे, तीनों से निकल गए तो सीसीटीवी से फंसोगे, मतलब कैसे भी ना कैसे करके चालान कटेगा। Exactly. So that's an like very good example ये समझने के लिए कि कोई कितना ही अच्छा सिस्टम बना ले, कोई कितना ही अच्छी चीजें बना ले, बट कोई ना कोई चीज कभी ना कभी निकल जाती है और उसको क्रैक कर सकती है। आई विल टेल यू एन एग्जांपल। अभी तक के सबको ये लग रहा होगा आज के जमाने में दैट हैकिंग जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो हैकर्स हैं वो बैठ के अपने लैपटॉप में कोड लिख कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज के जमाने में को पायलट्स, ठीक है, एआई एजेंट्स, उसी के साथ साथ कंप्यूटिंग पावर इतनी बढ़ चुकी है, एआई एजेंट्स कंटिन्यूअसली आपको अटैक करते रहेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हम कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें जितनी कंप्यूटिंग पावर है वो पूरी कंप्यूटिंग पावर हम यूज कर सकते हैं किसमें, सिर्फ और सिर्फ हैकिंग पर्पस के लिए, ठीक है।
एज कंप्यूटिंग के थ्रू हम हैक कर सकते हैं. सो आज के ज़माने में इट्स नॉट कम्प्लीटली कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वही सब दिख रहा है, नहीं. आज के ज़माने में हैकर्स आर नॉट एक्चुअली हैकिंग, दे आर एक्चुअली लाइक स्पैमिंग. मतलब आप सोचो कि एक एआई एजेंट है, वो एआई एजेंट कितना पावरफुल होगा, क्योंकि उसकी कंप्यूटिंग पावर कितनी ज़्यादा है, और वो कितना मतलब एफिशिएंट होगा एक नॉर्मल हैकर से जो कोई सिस्टम हैक कर सकता है. So you can understand the things according to this. Okay. So this is round 1 of this episode. Now we'll jump to the round 2, that is rapid fire round. Definitely we Okay, can let's go ahead. start. So what's the most shocking cybercrime case you have ever come across? Most Shocking cybercrime. shocking cyber crime I ever came across. So if I have to say that there is a company in Australia. It's known as Nipoxy. Okay. Okay. So what happened with them is that they actually started their company 1 week ago, and after 1 week they are very good in revenue. They are having billion of dollars in their accounts. What happened? By chance, an intern came, and that intern actually opened the firewall for doing something, and he didn't realize that he opened the firewall of the whole server computers. He thought that he's using his own personal computer which was given to him, but he actually accessing the server computers. Okay. And all the data and all the money the attackers got, and they retrieved it. Okay. So this is one of the most shocking thing I came across, that how the professional can do this kind of things. How cyber attacks are very common on adult websites. Adult websites, right? So like I was one of the users, मतलब पहले, ठीक है, adult websites के, है ना. तो like everyone was, है ना. तो you can able to see that कि वहाँ पर लोकेशन आपकी ट्रैक हो जाती है. आप कहीं पर भी बैठे हो, लोकेशन आपकी ट्रैक हो सकती है, ठीक है. लाइक यू विल बी एबल टू सी दैट कि इफ यू आर सिटिंग इन भिलाई, वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू विल बाय इट एंड इट विल डिलीवर इन भिलाई. सो मतलब सी, आपने अपने लैपटॉप का सिस्टम का जो लोकेशन है वो ऑफ करके भी रखा है, बट दैट वेबसाइट इज एबल टू ट्रैक योर लोकेशन एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन. मतलब आप जिधर जिधर जाओगे और जहां पर आप उसको ओपन कर रहे हो, वहां पर आप उसको ओपन करके देख सकते हो कि वहां पर उसको वो लोकेशन ट्रैक कर रहा है. और सबसे मेजर, यू विल नॉट बिलीव, लाइक आई एम वर्किंग ऑन वन ऑफ द स्टार्टअप फॉर सेक्सुअल हेल्थ वेलबींग एज वेल एज टू stop this adult websites, especially in India and among the youth of around 12 to 25 age group. So what we came across, India is the largest market of the pornography as well as the adult films. They are the biggest consumers. Even those who made it, the America, reality. Even in the America, people are not consuming as much as Indians are using it. So you can just think of it कि कितना ज्यादा रिस्क है, क्योंकि जिस वेबसाइट को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है, जिस वेबसाइट को बोला जाता है आपको नहीं यूज करना है, पीपल आर यूजिंग इट. नॉट ओनली जो ऑफिशियल वेबसाइट, इफ आई शो यू, इफ यू मेरा अगर लैपटॉप लाते हो मैं दिखाऊंगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ब्लॉक्ड है, बट दे आर द क्लोन्स ऑफ द वेबसाइट विद द सेम डोमेन, एंड उसमें बस कुछ नंबर्स का चेंज है एंड सारा का सारा कंटेंट सेम है. तो वो ज्यादा रिस्कफुल है. क्यों ज्यादा रिस्कफुल है? क्योंकि आप टच कर रहे हो, एक बार टच करे, आप वापस से उसको टच कर रहे हो, आप उसको रन करने के लिए वापस उसमें पूरा का पूरा स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है. स्क्रीन गार्ड से आप किसी भी रीडायरेक्ट हो जा रहे हो कोई न्यू ब्राउजर में, और वो न्यू ब्राउजर से कोई भी चीज आपके उसमें डाउनलोड हो जा रही है सिस्टम में. यू वांट और यू डोंट वांट, वो आपके सिस्टम पे रहेगी, ठीक, अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू रियलाइज. और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आप कब डाउनलोड करें, वो कितने टाइम से है, और वो क्या क्या चीजें कर रही है. सो विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट. और जैसे ही आपको मौका मिलेगा, मतलब उसको मौका मिलेगा कि आपने अपने सिस्टम में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन में आपने पिन्स डाले, आपने अपना डिटेल्स डाला, वो डिटेल्स उसको पता चलेगा, और वैसे ही आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. सिर्फ ये एक एग्जांपल नहीं है, लॉस आपका सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पे नहीं हो सकता है. हो सकता है आपकी पर्सनल फोटोज हो सकता है आपका कोई और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो, कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हो जो कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी पर वो पब्लिक हो जा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेट थिंग.
सो दिस इज अ हार्श रियलिटी के सबसे ज्यादा जो खतरा है वो एडल्ट वेबसाइट्स हैं, क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इंडियन अथॉरिटीज कोई कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि इट्स लीगल इन अमेरिका बट इट्स नॉट लीगल हियर। Where do you feel which is the next big industry in tech? वैसे मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है ना, लेकिन अगर मैं पूरे स्टैटिस्टिक्स को देखूं और मार्केट ट्रेंड्स को देखूं, सो द नेक्स्ट बिग थिंग इज गोइंग टू हैपन इज एआई एजेंट्स। क्योंकि अभी तक के एआई बेस्ड वर्क्स हो रहे हैं, है ना, एआई इज लाइक फॉर यू टू हेल्प, बट इन द फ्यूचर जैसे आप अभी एआई को कंट्रोल कर रहे हो, है ना, इन द फ्यूचर देयर विल बी एआई एजेंट्स, है ना, जिसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं। लाइक अंडर साइबर गार्ड वी आर एक्चुअली डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ अ सर्विस कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली वी आर बिल्डिंग अ हार्डवेयर इन आवर कंपनी, सो हम उसको देख रहे हैं कि हम एआई एजेंट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर सारी चीजें जैसे अगर आप पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन निकाल लोगे, उसके into 3 in the next 15 years you will be able to see the AI agents। तो अभी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो AI agents you will be able to make a very good amount of money, okay, very good amount of money। मतलब अगर आपने एक AI एजेंट बना लिया जो एक्चुअली वर्क कर रहा है, so you will not able to think कि आपका next 50 to 60 years sorted है just in the work of like 1 or 2 years maximum। so this is the reality कि आप एआई एजेंट्स हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, तो आईओटी, स्पेशली रोबोटिक्स, ठीक है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि एवरीवन इज फोकसिंग मोर ऑन सॉफ्टवेयर। देयर इज नो वन हु इज, अगर सॉफ्टवेयर सारे लोग सॉफ्टवेयर में फोकस करेंगे, देन देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू फोकस ऑन द हार्डवेयर इंडस्ट्री। तो अगर आपके पास हार्डवेयर ही नहीं आएंगे उस पर्टिकुलर डोमेन के, तो आप उसको प्रोग्राम कैसे करोगे? So this is the major question, और ये कंसर्न आगे फ्यूचर में रेज होगा। दिस इज आई एम अंडरस्टैंडिंग में जब बाकी लोगों से बात करता हूँ, इवन दे अंडरस्टूड दैट के यस एवरीवन इज फोकसिंग ऑन बीटेक इन सीएसई। लाइक मेजर अगर आप डाटा निकालोगे लास्ट 3 ईयर्स से, लास्ट 3 to 4 ईयर्स से, मैक्सिमम जो ग्रेजुएशन हुआ है बीटेक में, इवन फ्रॉम द आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नो मैटर हाउ गुड इट इज, है ना, नो मैटर हाउ बैड इट इज, पर सबसे ज्यादा बीटेक सीएसई और उसके अंदर में एआई एमएल या डाटा साइंस या अदर स्पेशलाइजेशन। पर अगर आप सबसे ज्यादा हाई रेट देखोगे कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कौन है अभी बीटेक इंडस्ट्री में, सो सबसे ज्यादा है बीटेक सीएसई इंजीनियर्स। एग्जैक्टली, सो देयर आर सो मेनी रीजंस के उसके क्यों है ना, उस पे नहीं जाते हैं अभी। अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। Where do you feel which is the next big industry in tech? तो रोबोटिक्स, एआई एजेंट्स एंड आईओटी, सो दिस आर सम ऑफ द वेरी गुड फ्यूचर टू एक्सप्लोर। आईओटी इसलिए क्योंकि एवरीथिंग इन द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ऑटोमेटेड, नो मैटर कि कोई बिलीव कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड दिस इज द ट्रूथ। इवन इन द इंडिया इट इज गोइंग टू बी completely automated। I will take an example that when we came, है ना, so we have to open the door, we have to shut the door। Already वो जो door का concept है वो आ चुका है, right? कि वो हम जब आएंगे सेंसर उसको ट्रेस करेगा और डोर अपने आप ओपन होगा, अपने आप क्लोज होगा। हम जब रूम में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल, है ना, जैसे हम अभी एसी का जो टेम्परेचर उसको कम ज्यादा अकॉर्डिंग टू हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर आप सभी घर में देखोगे कि जो एसी है वो काउंट करेगा एक्चुअली कि कितने लोग बैठे हैं रूम में, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना टेम्परेचर सेट करेगा कि बाहर क्या टेम्परेचर है, अंदर कितना टेम्परेचर है, कितना मॉइस्चर अंदर रहना चाहिए बाहर के कंपैरिजन में, और जब हम बाहर जाएं तब वो कितना टेम्परेचर होना चाहिए ताकि हमको अनईजी फील ना हो बाहर जाके। क्योंकि कई केस ऐसे रहते हैं, यू विल बी मे बी, जैसे भिलाई के कई केस थे, इवन छत्तीसगढ़ में चीज सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो समर का टेम्परेचर होता है वो नियरली अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, 48 रहता है एंड फील्स लाइक 40 to 51 रहता है। सो लोग बड़े अच्छे से एसी में रहते हैं रूम में, और एसी से निकलते हैं डायरेक्टली बाहर जाते हैं, या तो ब्रेन हेमरेज होता है या तो डायरेक्टली हार्ट अटैक आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस था बाहर के टेम्परेचर से, और जब बाहर जा रहे हो आप तो वो आप उसको कंस्ट्रेन नहीं, मतलब महसूस या फिर उसको झेल नहीं पा रहे हो बाहर के टेम्परेचर को, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और आईओटी सिर्फ और सिर्फ इन होम ऑटोमेशन में, इंडस्ट्री ऑटोमेशन में, बिजनेस ऑटोमेशन में नहीं यूज होने वाला है, ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज होने वाला है।
आई विल टेल यू एन एग्जांपल. अभी रिसेंटली मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी डाला था जिसमें मैं पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ IGKV के एक कंपटीशन में. सो एक्चुअली व्हाट वी आर बिल्डिंग इन दैट कि IoT को यूज करके जैसे फार्मर है, सपोज यू आर अ फार्मर, यू आर हैविंग अ फार्म ऑफ 1 to 2 एकड़, उसमें आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल लगाया, लाइक टोमेटो ले लो या और कोई ले लो, ठीक है. यू हैव टू गो एंड चेक कि वो रेडी हुआ है नहीं हुआ है तोड़ने के लिए, राइट. सो सपोज आपने आज लगाया है एंड फॉर एन एग्जांपल टमाटर अगर फॉर एन एग्जांपल 30 दिनों में रेडी हो रहा है, 30 to 35 डेज में. सो डेली यू हैव टू गो ऑन द 30 कि पका या नहीं पका, तोड़ना है नहीं तोड़ना है ना, उसको प्लग करके लाना ही नहीं लाना है. और लाना है तो अगर मान लेते हैं कि आज मैं गया और वो कल तक के धूप के कारण खराब हो गया क्योंकि मैंने वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया वहां पर कितने पक पाए थे पूरे, तो उसमें मैक्सिमम वेस्टेज हुआ, राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग ऑन अ ड्रोन जिसमें आर्म है और जिसमें बास्केट है और सेंसर्स है. सो एक्चुअली इट इज गोइंग टू द फार्म. वो सेंस कर रहा है कि कौन टेम्परेचर सेंसर्स के थ्रू में, क्योंकि जो पका नहीं उसका टेम्परेचर अलग होता है, जो पक चुका है उसका टेम्परेचर अलग होता है. सो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर प्रेफरेंसेस वो उसको प्लग करेगा, बास्केट में डालेगा. और फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप 4 दिन कर रहे हो वो 2 एकड़ के पूरे खेत को सामान लाने में बाहर, वो आपका काम रिड्यूस कर देगा लेस देन 3 to 4 आवर्स, लेस देन 3 to 4 आवर्स. सो हाउ एफिशिएंट इट इज, क्योंकि जहां पर आपका मैन पावर बहुत वेस्ट हो रहा है, जहां पर आपकी खुद की मेहनत बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है जिसको आप किसी और चीज पे लगा सकते हैं. सो IoT से इन द व्हाई इंडियंस आर नोन एज, लाइक हमारे छत्तीसगढ़ का दूसरा नेम क्या है, धान का कटोरा बोला जाता है हमको. वाई, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा फार्मर्स है. इन द नियर फ्यूचर अभी भी ये चल रहा है कि फार्मर शिफ्ट हो रहे हैं, अपने खेत बेच के कहीं पर दुकान डाल दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू access the technology, the resources which is government is providing. So these are the major problems which are many startups here in Chhattisgarh are solving. And they are very unknown faces, unknown brands which are working as an NGO and private limited who are doing great in their field. There are Safal Bazaar in Raipur. There are many other robotics companies who are making drones for the farmers. There are many irrigation companies who are working in agriculture. And all of them are focused on technology and IoT. So they are actually making it accessible and very low cost effective, you know. Like if we'll talk about Australia, you will see that they have huge tractors, they have huge resources. Harvesting पे बात करें, harvesters उनके पास की. If you will compare के हमारी जो उनकी फोर्ड है वो हमारा हार्वेस्टर है यहाँ का. So this is the difference you can see. So in the near future you will be able to see कि सब कोई रोबोटिक्स और IoT की हेल्प से अपने फार्म्स में खुद सारी चीजें लगा के either they will be accessing it or either they will be using it as their one of the revenue streams. So it is possible just because of IoT, robotics and new technologies, majorly in hardware plus how you're like collaborating hardware and internet. So this is the like फ्यूचर डिमांड एक्चुअली जो अभी चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है. क्योंकि अगर आप नोएडा जाओगे, दे आर ह्यूज बिल्डिंग्स एंड नो वन वांट्स कि उनकी कार नीचे धूप में खड़ी रहे. सो ऐसा हो सकता है कि रूफ में जो सोलर पैनल लगा है उसी में कवर लगा हुआ है. जब आप कार बंद करें, जब वो धूप में खड़ी हुई मोर देन 15 मिनट्स वो कवर अपने आप बंद हो जा रहा है. सो दिस थिंग्स आर इन द मार्केट बट इन द हाई कॉस्ट, क्योंकि कोई इनका कॉम्पिटिशन नहीं. Once there will be a competition, once there will be people in this industries, वो सारी चीजें accessible हो जाएंगी local public के लिए, जो हमको आज बहुत ज्यादा high cost में मिलती है. Okay, I was just going through a podcast for my research for the show, and I got to know कि like एक industrial revolutionization which is like 3.0, जहाँ पे social media बहुत ज्यादा trend में आ गया, and after this we get to know about the 4.0 revolution in the industry, जहाँ पे कि like AI and technology and robotics, like these have like huge demands in market in the next 2 years. Very true, I agree with you. And the next question is, which company of suffered the worst cyber attack in the last 5 years? In the last 5 years,
Definitely Indian Hmm. government. Indian government. Indian government like suffered the worst attacks and I can proudly say that कि जितने अटैक हमारे ऊपर हुए हैं वर्ल्ड में कोई और उतनी कंपनी नहीं है जो उसको हैंडल कर पाती बट वी आर एबल टू डू दैट एज एन इंडियन एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि जो डाटा इंडियन गवर्नमेंट के पास है जो डाटा से हम लोग अभी डील कर रहे हैं इट्स ह्यूज एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन सिटीजन्स अगर वो लीक होता है सो इट्स अ वेरी मतलब एक न्यू डिजास्टर रहेगा पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो अटैक्स हुए हैं वो अमेजोन पे हुए अमेजोन पे एंड लाइक हाउ आपको मतलब डेली लाइक न्यूज में आता होगा कि इवन इफ यू विल सर्च ऑन द इंटरनेट कि सबसे ज्यादा कौन सी कंपनीज पे अटैक हुए हैं सो अमेजोन का उसमें सबसे ज्यादा नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट का उसमें सबसे ज्यादा नाम होगा क्योंकि जितने बड़ी आपकी ब्रांड वैल्यू रहती है जितनी बड़ी आपके पास डाटा है ना उतना ज्यादा आपके पास में अटैक्स होते हैं जस्ट लाइक गूगल है ना गूगल में लाइक यू विल नॉट एबल टू कंपेयर कि इनका अगर आप कंबाइन कर लोगे ना सो यू विल नॉट एबल टू सी के कितने ज्यादा अटैक्स इन पे हुए हैं बट दे आर लाइक सेफ गार्डिंग देमसेल्फ क्योंकि उनके पास लाइक बेटर टेक्नोलॉजी है बेटर रिसोर्सेज है और ऑफ कोर्स पैसा भी बहुत है सो दे आर लाइक R&D में बहुत ज्यादा पैसा है ना सो दे आर लाइक यूटिलाइजिंग दोज मनीज एंड दे आर सेविंग देमसेल्फ Okay. How Russia holds for nearly 70% of global cyber crime revenue. Like even I have seen this when I was doing my R&D. कि Russia or China, they holds around 70% of the cyber crime revenue. Why? Why they are like so brilliant with hacking and all? Actually that's the fundamental thing which Indians also have to understand and consume, right? They are actually like you cannot be able to compete with the people of China, you cannot be able to compete with the people of Russia. Why I can say that? As an Indian, we are having very good work ethic. You know that if someone will say that, hey Miraj, we are hiring you and you have to sit here for 8 hours, you will be sitting for 8 hours in the office, right? You will be going on 801, but you will not go on 0759. You will go on 1 मिनट ज्यादा ही जाओगे आप मतलब 1 मिनट बाद से ही जाओगे बट वहां का ये कल्चर नहीं है व्हाट दे आर एक्चुअली फोकस इन छोटे से बचपन से दे आर वेरी गुड इन अवेयरनेस ठीक है उनको लोगों को चीजें पता है कि क्या कैसे होती हैं सेकंड जो उनका एक डेडिकेशन से काम करने का एक वो है लाइक इफ यू टॉक अबाउट चाइनीज नो वन इन द वर्ल्ड कैन वर्क बेटर देन देम सीरियसली एंड दैट्स द रियल रीजन कि जो उनकी इकोनॉमी है भी इतनी हाई है ना जो इतना उन लोग प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे पर वो आज का कहानी नहीं आज का अगर आप सीन देखोगे तो चाइना इज एक्चुअली गोइंग इन अ वर्स्ट फेज एंड दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू मेक गुड प्रोडक्ट्स क्योंकि हर एक इंडियंस के माइंड में क्या है हर एक बाहर के माइंड चाइना का प्रोडक्ट है सो एक हमारे अंदर वो आ जाता है कि चलेगा नहीं चलेगा राइट वैसे ही उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो नहीं चलते हैं ज्यादा सो दे आर मेनी गुड कंपनीज जो ज्यादा अच्छी सर्विसेज ऑफर कर रही है रेदर देन चाइना if I talk about the cyber security so they are the great engineers just because they are having the awareness right education and they're actually implementing those education and their awareness which they got in the starting phases of their journey they're actually implementing and combining them with the resources they are having and they are putting it together and they are like becoming the like OG of that field so you can like say that Okay, like I have just listened this somewhere कि there was a time जब most of the Indians started banning the product of China, like they are not accepting the product from China, and meanwhile, मतलब Chinese startups had designing the T-shirts जिस पे लिखा रहता था कि ban Chinese products. मतलब they are just implementing our ideas with their own products. So we have to accept this is somehow they are like better than us but like recently आपने बोला work ethic so how is their work ethic
लाइक जो पहली चीज बोला आपने है ना, इट्स इफ यू टॉक अबाउट द बिजनेस है ना, सो एज अ फाउंडर एनी हाउ यू वांट टू रन योर कंपनी, राइट? नो मैटर आप उसमें ये लिख रहे हो दैट मेड इन चाइना और बैन चाइना, राइट? सो दे एक्चुअली फोकस ऑन, they are not emotional enough like as Indians are. So I can say that Indians are emotional fool, you know, कि हम लोग ज्यादा सोचते हैं कि सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, हम अपना चीजें नहीं करते, हम ये करते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है ना। तो जब तक कि एज एन इंडियंस हम ये चीज बंद ना कर दे कि सामने वाला क्या करेगा, हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है। सो एज अ चाइनीज पीपल है, एज अ रशियन पीपल अगर हम बात करें तो उनके लिए वो ज्यादा मैटर कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी कंपनी क्या कर रही है, उनकी कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि जब सारे वर्ल्ड में स्पेशली इन इंडिया में जब एक फेज आया था दैट बैन चाइना प्रोडक्ट, बैन चाइना प्रोडक्ट, तो चाइनीज ने एक्चुअली क्या किया कि उनके सारे प्रोडक्ट में एज यू सेड कि बैन चाइना करके वो इंडिया एक्सपोर्ट करा रहे थे और इंडिया में बेचने लगे कि बैन चाइना, टी शर्ट बिक रही है बैन चाइना करके। सो उनका रेवेन्यू और ज्यादा बूस्ट हो गया, राइट? सो एक वही है, एक कहावत है ना कि आपत्ता को कन्वर्ट करना चाहिए अपॉर्चुनिटी में। तो उन्होंने वो चीज उनसे बहुत चीज अच्छी सीखनी चाहिए कि एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो और हमारे यहाँ स्पेशली क्या होता है, अगर हमको प्रॉब्लम आती है सो वी एक्चुअली लाइक हम उसी को डिस्कस करते रहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एंड व्हाट लाइक मैक्सिमम पीपल फोकस कि वो सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। और जैसे एक मैंने कल्चर की बात करी कि यहाँ पर 8 आवर्स आपको बैठना है। अब मैनी कंपनीज जो है, जो न्यू स्टार्टअप्स है, दे आर फॉलोइंग कि आप भाई 4 घंटा काम करो पर आप अपने दिन का काम करके इतना दे दो हमको, और बाकी आप फ्री हो करके। सो दिस इज द लाइक मेंटल पीस और लाइक जो फ्रीलीनेस से काम करते हैं ना, दे आर प्रोवाइडिंग इट। वहां पर आप 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते चाइना में, अगर मैं बात करूँ तो, है ना। उनको ब्रेक लेना ही है ना। वहां पर पॉड्स अवेलेबल है, वो आराम से सो सकते हैं, मतलब उनका काम करके, एंड दे आर वेरी हाइपर फोकस। अगर वो कर रहे हैं मतलब वो कर रहे हैं, दे हैव नो ऑप्शन। अगर वो मंथली वर्क करने जा रहे हैं तो वो मंथली के लाइक अगर 30 दिन है तो वो 30 दिन वर्क करने जा रहे हैं, पर 5 घंटा काम कर रहे हैं और फुल हाइपर फोकस से कर रहे हैं। तो अगर जब इंसान हाइपर फोकस वर्क करना चालू कर दे और कंटिन्यूअसली 5 आवर्स फॉर 30 डेज, यू कैन नॉट एबल टू इमेजिन द रिजल्ट कि क्या रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि वो अभी तक मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट्स द ट्रूथ कि अगर वो हाइपर फोकस के साथ वर्क हो पाए तो देयर कैन बी मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी चेंज्ड। सो ये पॉसिबल है। ओके, कीपिंग लोकेशन ऑन ऑल द टाइम ऑन फोन, डू यू थिंक इट्स सेफ अगेन? इट्स नॉट सेफ अगेन, लाइक आपकी सिक्योरिटी के लिए, लाइक पर्सनल सिक्योरिटी के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा आप सभी को कि आप अपने स्नैपचैट्स या बाकी एप्स के लोकेशन का एक्सेस दे के रखें। जब आप वो एप्स को यूज कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल यूबर यूज कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल मैप्स यूज कर रहे हो, तो जब वो आता है उसमें परमिशन का डेट यूज ओनली व्हाइल द ऐप इज रनिंग, तो आप हमेशा उस ऑप्शन को चूज करो रेदर देन चूजिंग कि कीप इट ऑलवेज ऑन, क्योंकि पता नहीं कि वो आपका डाटा कब एक्सेस हो जा रहा है। और स्पेशली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज में, दैट यू आर कीपिंग अ फोन एंड यू आर थिंकिंग दैट कि मैंने तो सब पासवर्ड, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन लगा के रखा है, बट योर फोन इज नॉट कंप्लीटली सेफ। एवरी टाइम योर फोन इज लिस्निंग व्हाट यू आर टॉकिंग, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो अभी भी कोई ना कोई सुन रहा है। और ये सच बात है, मे बी यू हैव हर्ड मेनी टाइम्स कि इंडियन गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, आप कब क्या कर रहे हो, कितना प्रोटेक्ट कर लो, इंडियन गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। हाउ इज दैट? ब्लूटूथ एंड लोकेशन और भी रीजंस है, क्योंकि ये सब जो आता है ना व्हाट्सएप पे, दैट योर डाटा इज इनक्रिप्टेड, इट्स योर डेट, वो ऐसा मे बी यू हर्ड इन द बिटवीन कि टेलीग्राम को इंडिया से बैन किया जा रहा था। क्यों बैन किया जा रहा था? क्योंकि टेलीग्राम का हेडक्वार्टर्स है कहीं पर, पूरा डाटा जाता है वहां पर और इंडिया के पास उसका एक्सेस नहीं है। तो जब कोर्ट्स में केस होना चालू है कि टेलीग्राम में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट जब आईटी सेल पे पूछा गया कि ये इसका डाटा दीजिए, तो उनके पास डाटा ही नहीं। सो जब टेलीग्राम को बोला गया कि आप हमारा डाटा हमको शेयर करो, मतलब हमको पूरा डाटा हमको देखना है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको यहाँ एक्सेस नहीं देंगे, फिर हम आपका ऐप ही बैन कर देंगे, आप टेलीग्राम इंडिया में यूज ही नहीं कर पाओगे। तो until and unless they shared their data of their particular persons or particular time period, तब वो इंडिया में अलाउड है।
तो ऐसा सोचना नहीं कि फोन आपका आपके पास है तो अब वो कोई एक्सेस नहीं कर पा रहे। इंडियन गवर्नमेंट के पास सब कुछ एक्सेस, इवन आपकी सारी चीजें, एवरीथिंग दे कैन एक्सेस व्हेन दे वांट, अनटिल एंड अनलेस इट्स सेफ। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो ये आपको माइंड में होना चाहिए दैट इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग यू, कोई भी एस्पेक्ट से आपको देख रही है। Okay. ठीक है, So we'll go with the round 3 of the section. डेफिनेटली। And like as we are talking about Russian and Chinese hackers, location on करना या फिर Bluetooth से, like if I have to talk about like particularly Bluetooth, तो आप Bluetooth को ऑन करके कनेक्ट करते हो और वाईफाई को ऑन करके आप अपने दूसरे वाईफाई, लाइक वी यूज टू गो टू अ वाईफाई कनेक्शन, और वहाँ पे ऑलरेडी जो रिसेंटली हमने पिछले वाईफाई से कनेक्ट हम लोग किए रहते हैं लैपटॉप में और फोन डिवाइसेस में, तो वहाँ पे रहता है ऑलरेडी सेव्ड वाईफाई जहाँ जिनसे हम लोग पहले हम लोग एस्टैब्लिश कनेक्शन करते हैं। तो लाइक वाईफाई से जो हैकिंग की प्रोसेस होती है डिवाइसेस की, लैपटॉप की या फिर किसी अदर डिवाइसेस की, तो मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें आप। Like you can be able to access the data from Bluetooth and Wi-Fi, to be honest, right? अगर आप मेरे को अभी कोई भी वाईफाई से कनेक्ट करके दे दो फोन को और मेरे पास अगर एक्सेस है तो मैं फोन का पूरा डाटा अपने पास ले सकता हूँ, एंड दैट इज डुएबल, वेरी डुएबल। क्योंकि सबसे इजीएस्ट थिंग्स जो है क्रैक करने के लिए वो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं और वाईफाई डिवाइसेस है, इजिली हैक हो जाते हैं। और ये सुना होगा लाइक इट इज अगेन वन ऑफ द सजेशन कि आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं कई बार, कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज करते हुए आपको पेमेंट नहीं करनी है, कभी भी नहीं। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, क्योंकि आप जो चीजें यूज कर रहे हो, जो ऐप यूज कर रहे हो पब्लिक वाईफाई यूज करके, यू डोंट नो कि उसका एक्सेस किसके पास है। और जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, जो भी बैंक डिटेल्स है, द हैकर्स और द पर्सन जो वो ऑथराइज्ड है वाईफाई जिनसे, दे कैन बी एबल टू रिट्रीव दैट डाटा एंड दे कैन बी एक्चुअली एबल टू हैंडल योर अकाउंट्स। और ये बहुत बार हुआ है। So this is the fundamental thing. If you want to safeguard your money, don't ever pay वाईफाई, पब्लिक वाईफाई यूज करके कभी भी नहीं करना चाहिए। सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि हाउ इट इज सेफ कैसे बना सकते हैं, सो मेजरली जब आपको काम नहीं है, लाइक मैंने कई लोगों को देखा है फॉर नो रीजन उनका ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन रहता है। सो ऑलवेज कीप अ ट्रैक कि आपके फोन में कौन सी चीज रुकी हुई है, कौन सी चीज बंद है, कौन सी चीज चालू है। द बेस्ट वे टू सेव योर सेल्फ, यू नो, टू कीप दैट नोकिया छोटा फोन। और मेरे जितने भी ओटीपी, मेरे सारे ओटीपी उसी में आते। मैं कभी भी अपने ये वाला जो फोन है उसमें कोई भी ओटीपी मैं नंबर नहीं देता। सारे बैंक अकाउंट सब कुछ मेरा ऑथराइज्ड है सिर्फ और सिर्फ वो नोकिया से। कि उसका रीजन है क्योंकि व्हाई नॉट आईफोन? इट्स नॉट सेफ। व्हाई? हाउ? आपने सुना होगा क्योंकि अभी रिसेंटली ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2022 में चले जाते हैं। अमेरिका की बात है, ठीक है। तो वहां का एक इंजीनियर था who is working on डिफरेंट कंपनी, और वो पहले एप्पल में वर्क करता था। सो आई क्लाउड जहां पर सब कोई अपनी फोटोज स्टोर करते हैं, सो इट एक्चुअली हैपेंड कि उसकी पर्सनल फोटोज जो थी एक्चुअली वो इंजीनियर ने लीक कर दी आई क्लाउड से। और वो आई क्लाउड की मैक्सिमम फोटोज का डाटा उसने अपने पास रखा और मैक्सिमम को उसने खराब कर दिया, ठीक है, जो हम करप्ट बोलते हैं हमारी भाषा में, अगर हम प्रोफेशनली उस पर बात करें तो। सो दिस हैपेंड एक्चुअली इन 2022, अगर आप देखोगे तो जाके कि इवन एप्पल का जो डाटा था आई क्लाउड में वो भी हैक किया गया है, जो बोलता है कि मेरी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है ना, नहीं है। इवन इन द वेरी डेलीगेट्स एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, बट दे एक्चुअली टेप देयर कैमरा, अगर आप देखे होगे, है ना, आप यूट्यूब में देखना, है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिशियंस हैं, तो दे एक्चुअली सेव देयर फोन कैमरा बाय टेपिंग देम। कई लोग को मैंने ये भी देखा है कि वो पूरे कैमरे में पुट्टी भर देते हैं। ओके, हाँ, मैंने देखा है ये चीज, है ना, क्योंकि आई एक्चुअली वर्क विद द सो मेनी गवर्नमेंट डेलीगेट्स, तो वो जितने भी उसमें वो सब उसको ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? ताकि उससे भी जाता है करके आवाज, या यू कैन बी एबल टू एक्सेस द कैमरा। सो आजकल बहुत सिक्योर हो गया, है ना। बट मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला, एवरीथिंग इज अ टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज अ टेक्नोलॉजी।
until and unless कि कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपने सारे पैरामीटर्स, क्योंकि हम सारे पैरामीटर्स एज्यूम नहीं करके चलते ना. सपोज कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, है ना, हमने अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके रखे, बट यू नेवर नो कि सामने कब कौन सी चीज आ जाए, राइट. सो दिस इज द थिंग, ऑल द टेक्नोलॉजी आप सारे पैरामीटर्स कभी कवर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं. जैसे अगर 20 पैरामीटर हम कवर कर रहे हैं तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट 80, और वो नेक्स्ट 80 जब आपके पास सामने आए तब आप उसको फिर सेव कर सको. सो दिस इज द थिंग. Like we are talking about for the last 30 minutes, 30 to 40 minutes, cyber security, कैसे hacking होती है, and Chinese hackers, Russian hackers. अब एक और टॉपिक है यहाँ पे, डार्क वेब. What is dark web? Dark web is actually interesting, very interesting, and it's illegal too. So I will not suggest कि ये एपिसोड देखने के बाद कोई जाके डार्क वेब में ब्राउज करे और एक्चुअली वहां पर फंसे जाके, क्योंकि आप डार्क वेब में अगर देखो, डार्क वेब के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर मैं आपको बता सकता हूँ, आप जाके एक्चुअली यूज कर सकते हो, बट दैट शुड बी डन विद द VPN. ठीक है, अगर आप सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हो, है ना. तो सबसे मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये एपिसोड देख रहा है और वो अगर स्टूडेंट है और अगर उसको बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है डार्क वेब का कंसेप्ट, तो वो एक चीज करे कि वो पहले सीखे कि होता क्या है, उसके बाद उसको एक्सेस करे. क्यों? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है, क्योंकि अगर ये मैं वो क्वेश्चन में वापस आऊंगा, पर ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ऐसा डोमेन है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप लर्निंग पर्पस के लिए भी कुछ यूज कर रहे हो तो आपको बहुत सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि एक गलत मिस्टेक और आप उसके नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप दिल्ली साइबर सेल पुलिस के साथ बैठे होगे या अमेरिकन साइबर सेल की पुलिस के साथ बैठे होगे, यू नेवर नो. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी बहुत ही मतलब उसको सावधानी के साथ आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये होता है, जो बच्चे सीखते हैं, सीखते सीखते कुछ गलत हो जाता है, इवन अ वेरी स्मॉल मिस्टेक, और वो सीधा हाईलाइट हो जाता है पुलिस में. सो लाइक आपका जो करियर है वो ऑलरेडी एक बार पुलिस रिकॉर्ड में नाम आता है तो ऑलरेडी यू आर ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम द मेनी कंपनीज. सो ये गलती बिल्कुल भी ना करें. सो इफ आई कम टू द क्वेश्चन, लाइक कैन यू प्लीज रिपीट इट? डार्क वेब. सो डार्क वेब एक्चुअली अभी बहुत उसका इस्तेमाल बढ़ गया है. हाउ इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव? इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव इन मेनी मैनर्स. हाउ? क्योंकि अगर आप एक बार डार्क वेब यूज कर रहे हो, है ना, डार्क वेब आप यूज कर रहे हो, आपने ट्रांजैक्शन किए उसमें, राइट, सो वो उसका डाटा तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, बट यू नेवर नो कि वो कहाँ हो रहा है, आपको पता ही नहीं. और डार्क वेब से पैसा भी बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है. ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनाया जा सकता, बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है. सो द रिसोर्सेज, मैं रिसोर्सेज के टर्म्स में बात करूं, मैं हैकर्स के टर्म्स में बात करूं, सो दे ऑल आर अवेलेबल ऑन द डार्क वेब. और जो आप मनी लॉन्ड्री सुनते हो, है ना, एक जगह से पैसा उधर भेजना है, उधर से इधर भेजना है, क्रिप्टो सुनते हो, है ना. सो ये 2 फेज में होता है. एक प्रोफेशनली हो रहा है, सारे आप टैक्स देके कर रहे हो, एक डार्क वेब में हो रहा है. अब डार्क वेब हर कोई यूज नहीं कर पाएगा, इट्स रियली नियर टू इम्पॉसिबल फॉर अ न्यू पर्सन टू यूज इट. अगर वो कर रहा है तो वो फंसेगा, राइट. सो और एक्चुअली डार्क वेब का यूज करना बैन है, क्योंकि नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते, नहीं कर सकता. सो लाइक देयर इज अ टर्म लाइक हेल्प मी टू अंडरस्टैंड. एक होती है हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हैकिंग, और एक एथिकल हैकिंग. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? हैकिंग एंड एथिकल जो आप सीख रहे हो साइबर सिक्योरिटी में, स्पेशली एज ए स्टूडेंट, वो एथिकल हैकिंग है. हाउ एथिकल हैकिंग? के सामने वाले को पता है कि आई एम गोइंग टू हैक हिज फोन और लैपटॉप, और वो एक्चुअली मुझे परमिशन दे रहा है कि हाँ आप ये चीज को करो, ताकि मैं और अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूँ, अपने आप को कैसे सेफ रख सकता हूँ. ना सपोज इसका राजू का फोन का ब्लूटूथ ऑन है और वाईफाई ऑन है, पब्लिक वाईफाई है, और वो पब्लिक वाईफाई का एक्सेस मेरे पास में, एंड आई एम डूइंग द प्रैक्टिस. और मैंने इसको पहले ही बोला है कि यू पे पब्लिक वाईफाई यूज करके, जिसका ऑथराइज्ड पर्सन मैं हूँ, और मैं राजू को दिखा रहा हूँ कि मेरे पास देखो, तुमने जो ट्रांजैक्शन किया उसके पूरे डिटेल्स मेरे वाईफाई, पब्लिक वाईफाई के थ्रू मेरे को दिखा रहे, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैं हूँ, तो यू कैन सी दैट.
तो ये होता है एथिकल हैकिंग. यू आर एक्चुअली लाइक लर्निंग, मतलब यू आर एक्चुअली saving the people from the cyber attacks, right? So that practice is known as ethical hacking. और हैकिंग अगर देखें तो हैकिंग आर द एक्चुअली रेड हैट हैकिंग. आप कोई भी चीज कैसे भी रिट्रीव कर रहे हो, यूज कर रहे हो, और उसको आप ब्लैकमेलिंग के लिए यूज कर रहे हो या सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज कर रहे हो, सो दैट्स हैकिंग. मतलब दो वे है. अगर आप गुड कॉज के लिए यूज कर रहे हो, सो दैट इज फॉर दैट टर्म इज एथिकल हैकिंग. अगर आप उसको बैड यूज के लिए यूज कर रहे हो तो वो दैट टर्म इज फॉर हैकिंग. Okay. One last question, which I always used to ask with every guest. What would be your one piece of advice to build a $1 billion company in tech? In tech, you just need a right problem, you just need a right solution, and you just need right people to do it. You always need a friend who is going to be there with you, who is going to help you, and who is going to do the work with you in any way in the company. And all these things, with these things, you will be able to make a $1 billion company. And fourth, अगर हम उसमें consider करें, there are 4 pillars. The 3 I told you. The fourth one is how you're actually seeing the market, how your research are, because there are various frameworks, various TRL levels. So if you're going one by one to the TRL level, you will be able to do it. But you also have to understand the market demand, what actually market is demanding. For an example, right now there is a need of AI agents. As I told you, there is a need of AI agents. What is like Microsoft Copilot? They are all in very early stages. Still Microsoft Copilot is so powerful. So in the future, suppose you are working on AI agent, and it took you to build AI agent around 20 years. So it's not useful for you. So you have to understand the market needs and detailing of the market, at which technology and the product in which I am working, service in which I am working, whether it's a SaaS or whether it's a product. So you should be able to understand that कि उसकी need कब सबसे ज़्यादा है, और according to that you should work. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लीगल कंप्लायंसेस में, राइट? सो बी रेडी कि अगर आप कुछ कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लीगल कंप्लायंसेस आएगी, और आप लीगल कंप्लायंसेस में बहुत ज्यादा फंस सकते हो. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आपको एक सीए और एक लॉयर दोस्त बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी आपके काम आते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली इन बिल्डिंग अ स्टार्टअप. क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स फंडिंग में नहीं फंसते. फंडिंग इज सो इजी टू ग्रैब इन 2025-26 आने वाले टाइम पे. राइट नाउ यू जस्ट नीड प्रोडक्ट, यू जस्ट नीड अ आइडिया एक्चुअली. क्योंकि मैनी पीपल, मैनी इंक्यूबेशन सेंटर्स एक्चुअली बिलीव मी एंड लाइक दे इन्वेस्टेड ऑन माई आइडिया ओनली. मेरे पास यहाँ तक के प्रोटोटाइप भी नहीं था, and they actually invested in the idea. Yes, this idea is good and this is a future idea which is going to like stand for next 50 to 60 years. So this is the thing कि आपको फंडिंग तुरंत मिल सकती है, लेकिन आपको फंडिंग मिल गई, आपके पास टीम बहुत अच्छी, लेकिन अगर आपने लीगल कंप्लायंसेस में ध्यान नहीं दिया, so there are the penalties of 25 lakhs, penalties of 65 lakhs, penalty up to 1.5 crore rupees. So suppose there is a startup who started working on और उसको सिर्फ 6 महीना हुआ है, उसका रनवे माइनस में जा रहा है, और अगर उसको लीगल कंप्लायंसेस से नोटिस आ गया लीगल वर्क से कि आपको जो है अब पेनल्टी देना पड़ेगा ऑफ 60 to 50 लाख रुपीज, जब उसका रनवे ही माइनस में है, तो हाउ ही कैन एबल टू, और हाउ द फाउंडर्स कैन एबल टू गिव द पेनल्टी. सो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ द स्टार्टअप शट डाउन इन इंडिया, कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है लीगल कंप्लायंसेस की. Okay. So this was all. Thank you for joining us on The Hustler. So I think कि mostly जो doubts होंगे आपके cyber security के, और क्या क्या मतलब steps आप ले सकते हो ताकि आपको कभी वैसे situation face ना करना पड़े. तो thank you again for joining us. Thank you so much, Raju. Thank you so much for inviting me in the show. And I have a small request to all of you. Never use your mobile phones in a public spaces, especially connected with the public Wi-Fi. And keep watching the Hustlers show. Many more episodes are going to be come in the future with the great guests, and
I believe this is going to be one of the great show which is going to recognize globally, and you have to made it right. Sure, sure.